So this is erased. Now the whiteboard is automatic to use in laptop. Earlier it was manual. Okay. So in the aim of this program is you will write in a part program. ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल में आप लिखोगे the aim of the program is to write and to prepare a program for facing and plane turning. Right, this is the aim for the given object or the given workpiece as shown in this diagram. Second line में आप लिखोगे the raw material of the workpiece is aluminium rod, diameter of 20 mm, speed of is 800 rpm, then feed is 200 mm per minute, depth of cut is 2 mm is given in the program. So this depth of cut is the amount of material removed from the workpiece. So now you can see this pointer part is visible to you or not, because whenever I am moving the mouse in another device, this will appear as a pointer or a highlighter. I think highlighter is different. This is highlighter, this is draw. So this cursor is acting as a pointer. I think this draw button is acting. Yes, right, because this is the only way to teach a program, right? Either on the blackboard by the help of a chalk and duster, and or by this pointer and a whiteboard. So this entire part, this 20, is the initial diameter of the workpiece, right? So right now this entire 20 part is, so this initial diameter is 20, and final we have to achieve this one 15. I am not drawing over here, I am just simply moving a cursor over here. This is 15. So this, what is to be removed? So the first part of the program is कैलकुलेशन पार्ट और दी एस्टिमेशन पार्ट. ठीक है, कहीं पर आपको लिखना नहीं है ये कि ये कैलकुलेशन हमने की है या ये एस्टिमेशन किया है, बट एज अ प्रोग्रामर यू आर कैलकुलेटिंग इट इन योर माइंड दैट हाउ मच मटेरियल इज टू बी removed. So you will be dividing the dimensions into many parts, like I have divided on this white page. You will simply draw it neatly on a drawing page and try to divide the dimensions in n number of parts. ठीक है, और वो कौन से n number of parts हैं that will be known to you once you know the aim of the program. टूल को आपको मूव कैसे करना है, जब तक ये नहीं पता है तो आप सारे पॉइंट्स की डायमेंशनिंग या कोऑर्डिनेट नहीं पहले से फिल नहीं करोगे. ठीक है, जिसको जिस पॉइंट की जरूरत है आप उसे साइमल्टेनियसली फिल करते हुए मूव करोगे. ठीक है, दैट दिस इज द इनिशियल 20 पार्ट. देन एस्टिमेट क्या लगाएंगे हम इसमें से, दिस इज 15. ठीक है, सो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट. वी कैन हाईलाइट इट or we will highlight it later. This is light blue. This highlighter is not working. Okay, then we will draw it. So what material is to be removed from this 20 and 15? We are simply subtracting 20 minus 15 will be 5. And what is the dimension or what is the unit of this dimension? 20 is the value, numeric value 20 है, and unit is mm. We have not written it, but we will specify it in the program G71 that all the dimensions are in mm. Metric mode is used. ठीक है, so आप यहाँ डायग्राम में सिर्फ 20 वर्ड यूज करोगे, rather 20 mm. 15 यूज करोगे 15 mm की जगह, और प्रोग्राम में भी 20 15 ये वर्ड्स ही यूज करने हैं. ये सारी यूनिट्स mm में है. एक कोड आप पहले से प्रोग्राम में प्लेस कर दोगे. व्हाट इज द कोड? दिस इज द कोड, यू कैन सी G71. This G71. This means that the program is written in a metric mode. Metric mode means all the dimensions are written in mm. मिलीमीटर में सारी dimensions हैं. आप एक बार ये लाइन लिख दोगे just by this help symbol G71, बार बार नहीं लिखोगे. ठीक है, simply G90 आपने एक बार लिख दिया, then that means the program is written in absolute mode
ऑफ डायमेंशनिंग। दो मोड होते हैं, एक लेक्चर में पढ़ाया था, एब्सोल्यूट मोड और कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंटल मोड। एब्सोल्यूट मोड में कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 के रेस्पेक्ट में स्टडी किए जाते हैं, लाइक दिस इज दी 0 0 राइट नाउ ऑफ दिस सिस्टम डायग्राम, राइट। और इंक्रीमेंटल मोड में हमेशा प्रीवियस पॉइंट से लिए जाते हैं। तो एक प्रोग्राम अभी जो आप लिख रहे हो या समझ रहे हो एब्सोल्यूट मोड में है, एक इसका प्रैक्टिस प्रोग्राम हम अपलोड करेंगे और लैब में समझेंगे कि इंक्रीमेंटल मोड में होता तो क्या कोऑर्डिनेट्स होते, राइट। G94 means that the feed is given in mm per minute। अब इसमें क्या मिसिंग है इस पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। जो आपको फाइल अपलोड हुई है वो PDF फाइल है, और अभी जो आप देख रहे हो ये A4 फाइल है, ठीक है। इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया है प्रोग्राम N10 is missing, N01 is missing। So initially you have to हर लाइन के इनिशियल में कैपिटल N नंबर लिखना है, N01 N10, और हर लाइन के एंड में आपको EOB लिखना है, कैपिटल E, राइट। वो अभी यहाँ पे सब कुछ मिसिंग है बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली विद द commands part। So this is the eraser, now this is automatic eraser, so it will take, but this point is not removed, what is the reason? Okay, I will check it later। Then again come to draw and the color, so we are actually learning these tools separately in a online course, ठीक है। हम ये एक ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इसमें सेमिनार में, ठीक है। हाउ टू यूज दी व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और दी Gmeet और दी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड बहुत सारे टूल्स उसमें है। वी विल कीप ऑन चेंजिंग आवर टूल्स, बट अभी आज लेक्चर्स इसी से सफिशिएंट है प्रोग्राम से रिलेटेड, राइट। सो कम बैक टू दी डायमेंशन पार्ट। ये लाइन आपको क्लियर हो गई है एक, वी विल टेक इट, ठीक है। इसमें N कैपिटल वर्ड मिसिंग है और EOB मिसिंग है। यू विल ऐड इन ऑल दी लाइन्स, दे आर ऑलरेडी एडेड इन दी PDF फाइल में रिटर्न है। नाउ कम बैक टू द डायमेंशन पार्ट। दिस इज 20, दिस इज 15, रिमेनिंग 20 minus 15 is 10, so and that 10 is divided in two parts, 20 minus 15 is 5, then 5 is divided in two parts, 2.5 and 2.5. The 0 0 or the reference point, Harshit is admitted, 0 0 is this point, right? In the beginning of the program you have to specify which point is the 0 0 or the reference point, so we have made this as the 0 0 point, and this entire part is solid here, ठीक है। ये अभी पूरा वर्क पीस है इस तरीके से, ये आपको जो एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर भी है मटेरियल और यहाँ पर भी है मटेरियल। ये डाउट अभी आप अपने माइंड में नहीं रखोगे। एंड दीज लाइन्स शुड बी स्ट्रेट, ये थोड़ा अलग ही है, ठीक है। वी आर इरेजिंग, the lines, okay, this draw button has to be selected every time, ठीक है, हर बार हमें ये select करना पड़ेगा, right? So this entire pink color जो आप देख रहे हो, this is solid part, ठीक है। again straight नहीं आया, I will check it why. The idea is this is solid and this part, pink material, pink hatch lines are to be removed from it, ठीक है। so how will they be removed, and ultimately okay, ठीक है। अभी जो स्क्रीन ने मैं आपको नहीं विजिबल दिखा है वो यही है, दैट द इनिशियल डायमेंशन इज 20 mm and you have to reduce it up till 15 mm. The program is known as plane turning because we are removing the material along a straight line rather than an inclined line as in a taper turning, and we have to do facing. We have to completely surface one part as a flat surface. So the command will be again the G01
linear interpolation will be there, right? There is no specific command for facing. So first point is 0 0. So you have to rapidly move the tool from the point to a point known as 0 0. राइट अभी टूल की पोजीशन कोई भी हो सकती है, बट यू हैव टू मेक इट राइट हेयर 0 0 पर आप उसे लाकर स्टॉप करोगे. देन यू विल मूव द टूल. दीज आर सम कमांड्स विच मीन्स M03 spindle start clockwise, feed is given at a value 150. You can change it to 200 also, because here it is written 200, here it is written 150. So mismatch is there. ठीक है, आप एक जगह चेंज कर लोगे, either here 150 or here you make the changes 200. Then spindle is RPM is 800. So this is second line G00. Then G01 is the third line. Now you are labeling the points just for your reference, for your rough work. In the rough copy you will try to draw this diagram today or tomorrow and label the points as 1 2 3. So one point is this 0 0, this entire workpiece, and the corner, rightmost corner on the this side is known as 0 0. Label it as 1, or you may skip it, but as a beginner you may label it. Then the tool has to come to a point -10 0. Now where is point 2? You have to locate this with the help of this small dimension diagram. As you can screen last part is there, this one. ठीक है, अभी आपको छोटा विजिबल होगा तो ये पिंक सर्कल मैंने क्रिएट कर दिया है यहाँ पर. You will make it as a indicator. As you can screen लास्ट पार्ट इज देयर, दिस वन. ठीक है, अभी आपको छोटा विजिबल होगा तो ये पिंक सर्कल मैंने क्रिएट कर दिया है यहाँ पर. यू विल मेक इट एज अ इंडिकेटर और अ डायमेंशन इन अ रफ कॉपी. ठीक है, डायग्राम के पार्ट में फाइल में आप छोटा सा ही हमेशा बनाओगे. और दिस इज नॉट ओनली फॉर रफ पार्ट, यू कैन मेक इट इन अ फेयर प्रैक्टिकल फाइल ऑल्सो, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम? ऑन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज गिवन एज पॉजिटिव साइन. So the signs are changed now. Earlier जो आपको पढ़ाए थे ड्रिलिंग में, ठीक है, we can change these signs as per our program, but you will keep a standard for your practical file that we are marking this as a minus and plus. In some books you may find it as a plus and minus. Then the entire program will be read as a minus and plus will be different in that program. ठीक है, आप ये चेंज करके नहीं लिखो, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट अभी कर दिया है. माइनस in the upward direction and positive in the downward direction, right, which is contradictory to the previous drilling program. In the lathe program we are designating it as this only. You may change it, आप प्लस इसे भी ले सकते हो, माइनस इसे ले सकते हो. Then you will follow this in the entire programs. ठीक है, तो आपने ये स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है. और ये माइनस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में -z, राइट, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में +z. So it is used in the labeling part or the determining the motion of the cutting tool. कोई लिख रहा है अभी कमेंट, ऊपर भी हो सकता है. यस, यही मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ. प्लस और माइनस को आप चेंज कर सकते हो, इट इज अप टू यू. ठीक है, आप इसे अगर माइनस लेबल कर दोगे, ठीक है, तो आपका एंटायर प्रोग्राम फिर माइनस के अकॉर्डिंग ही रन करेगा जब भी टूल ऊपर मूव करेगा. ठीक है, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन. व्हेन द टूल इज मूविंग अपवर्ड यू हैव टू राइट माइनस देयर. इफ यू आर मेकिंग दिस एज अ प्लस, ठीक है, तो फिर यहाँ पे देन दिस एंटायर प्रोग्राम विल बी रिटन एज प्लस ओनली. ठीक है, देन यू विल नॉट कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, आप डेजिग्नेशन जो एक बार कर दिया है आपने, ठीक है, वो फिर आप पूरे प्रोग्राम में एक ही जैसा रखोगे, उसे बीच बीच में अपनी मर्जी से फिर माइनस नहीं कर सकते आप. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है, मान सकते हो आप, देन उसमें पूरा प्रोग्राम एक ही उसमें रन करेगा. एक बार और जब सेकंड प्रोग्राम करेंगे तो इसमें हम डिफरेंस समझा देंगे. अभी आप एब्सोल्यूट के साथ माइनस प्रोग्राम, माइनस जो पॉजिटिव है
ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस लिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम आप क्लियर कर लो। देन टर्निंग के सेकंड प्रोग्राम में हम डिस्कस कर लेंगे इंक्रीमेंटल मोड एंड माइनस इज टेकन एंड दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड वाई, सो वी विल डिस्कस इट देयर। ये सेटिंग हमें फिक्स करनी होती है, तो एक बार जो आपने फिक्स कर दी है वो फिक्स ही रहेगी, राइट, सो दैट विल बी डिस्कसिंग इन दी लैब पार्ट, ठीक है, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मशीन का एंड वी विल शो दी मशीन ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसे माइनस अज्यूम कर लिया इस प्रोग्राम में, तो अब ये पूरा में माइनस ही चलेगा, और ये जो माइनस अज्यूम किया है, ठीक है, दैट इज प्री सेट इन दी प्रायर टू दिस प्रोग्रामिंग, वो मशीन में सेट होगी। कोडिंग इस तरह से उसमें फीड हमें ही करनी पड़ेगी मैनुअली, राइट। मशीन इज अ डमी पार्ट, इट विल नॉट थिंक लाइक अस, सो वी हैव टू फीड एवरी इंफॉर्मेशन इनसाइड इट, ठीक है। ये माइनस प्लस 0 0 दैट इज टू बी फीड इनटू इट। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। इन द सेकंड लाइन G01 means tool is moving in a straight line and it is cutting the material also, because it is a interpolation command. So from this point 0 0 the tool has to move up till a point minus 10, 0. So that's why first imagine this, that the tool has to move up till here, and when it is moving from 0 0 से, ठीक है, minus 10 0 तक आ रहा है, then it is touching this edge or this side, ठीक है, tool ने touch किया हुआ है इस पूरी side को. If any irregularity is there, like this pink surface is above or some cut is there over this protrusion is there, then it will be removed, ठीक है. जैसे ही टूल यहाँ से ऊपर मूव करेगा, ठीक है, इसको स्ट्राइक करेगा तो इस मटेरियल को ये कट कर देगा. अभी हम इसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है. कटिंग आपको एक्चुअल में नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर कोई था इसमें कोई भी इरेगुलरिटी, राइट, तो वो कट हो जाएगी. और अब आपका क्वेश्चन ये आएगा नेक्स्ट कि फिर ये ऊपर के मटेरियल से कैसे कट हो रहा है, ठीक है. ये क्वेश्चन आ रहा है that when the tool is moving from this point 0 0 to this, okay, the point, the workpiece is not still or it is not static, ठीक है. वो static नहीं है पोजीशन में. वर्कपीस जो फिक्स्ड है that is moving also, ठीक है. it is rotating also. So as it is rotating, the material on the top part is coming rapidly, it is moving in a rotation form, ठीक है. ये जो वर्कपीस है ये सिलेंड्रिकल है और ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है. अब इस पिंक डायग्राम में आप देखो, and you will revise this concept after this lecture also, because first lecture will be always tough either for drilling or for turning or for milling, ठीक है. फर्स्ट लेक्चर हमेशा ही टफ होगा, उसमें सारा बेसिक समझाना है आपको आधे घंटे, ठीक है. और उसके बाद ये वैल्यूज लिखना इजी हो जाएगा आपके लिए. तो ये बेसिक क्या है कि ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, ठीक है. दिस इज द सेंटर, दिस इज द एक्सिस अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, एंड टूल इज मूविंग फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, बट एज सच इट इज टचिंग दिस एज पार्ट ओनली. ये 3 डायमेंशनल में आपने बनाया है, ठीक है. 3 डायमेंशनल में जब आप देखोगे, आई विल सर्च इफ एनी एनिमेशन इज अवेलेबल ऑन दी इंटरनेट. एनिमेशन भी बहुत इसमें मिल जाती है, ठीक है. तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि टूल नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है. तो ये जो वर्कपीस है ये साइमल्टेनियसली हर एज को कट करते हुए इस पूरे सरफेस की फिनिशिंग कर रहा है, या पूरे सरफेस पे जो भी कोई इरेगुलरिटी प्रेजेंट है उसको रिमूव करेगा. सो यू विल कीप दिस इन योर माइंड दैट द एंटायर मटेरियल इज बीइंग रिमूव्ड, ठीक है. सो रादर वी आर मूविंग दिस टू हेयर, ठीक है. आप यहाँ इसको मूव नहीं करा रहे इस पॉइंट पे, आपने इसे कहाँ तक मूव कराया है, -10 0, बिकॉज नो रिक्वायरमेंट इज देयर. वो वर्कपीस अपने आप में रोटेट कर रहा है. एक एनिमेशन से ये क्लियर होगा या इस कंसेप्ट से जो बताया गया है इसी बात से ये क्लियर होगा, ठीक है. तो सेकेंड लाइन इज G01 x -10 z 0. G01 means linear cut interpolation, that is cutting the tool moving in a straight line and cutting the material in a straight line from this 0 0 to this, and because this workpiece is rotating, so this entire face will be made flat. ये पूरी face को flat बनाया जाएगा. Yes, any doubt can be written right now.
M03 में लिख सकते हैं F200. Yes, we can change all the sequence. It is up to us. Like these are the initial commands. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि G90, G71, G94, ठीक है, G00. तो अभी ये अजीब सा भी लग रहा है यहाँ पर कि M03 यहाँ क्यों लिख दिया है, जबकि ड्रिलिंग वाले प्रोग्राम में आपको सेकेंड लाइन में लिखना सिखाया गया था. सो यू कैन मूव इट अप ऑन दैट पोजिशन ऑल्सो, राइट, एंड इट विल लुक बेटर. दैट इनिशियल कमांड्स आर रिटर्न ऑन दी टॉप. ठीक है, पहले हमेशा 2 लाइन इनिशियल रहेंगी. ठीक है, एंड यू विल लर्न इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, आज ही आप उसे कॉपी में लिखोगे व्हाट आर दोज इनिशियल 2 लाइंस, G90, G71, G94. और इसमें से क्या क्या चेंज कर सकते हो आप. ठीक है, G90 को चेंज कर सकते हो 91 में अगर इंक्रीमेंटल है. ठीक है, इन सब को ऊपर लेके आ जाओ, लाइन नंबर चेंज कर देना. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन रहती है इस लाइन में, G0000. तो इसका मीनिंग क्या है, ये थर्ड लाइन से मशीनिंग शुरू हो गई है और पहले 2 लाइन से सिर्फ कमांड या पूरा प्रोग्राम किस में वैल्यू क्या है, उसमें किस में रनिंग कर रहा है. ठीक है, या स्पिंडल की स्पीड से रन कर रहा है. ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको पहले 2 लाइन में देनी है. ठीक है, नहीं दी थी आप भूल गए तो आपने यहाँ लिख दी. ठीक है, लेकिन अच्छा वही है जो क्वेश्चन पूछा है, अच्छा है. ठीक है, अच्छा यही होता है, ये लाइन आप पहले लिखते तो, और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, आप देख लेना प्रोग्राम में क्या लिखी है जो आपको फाइल अपलोडेड है. ये तो एक A4 डायग्राम है ना, जो फाइल लिखी है उसमें आप इसे ऊपर ले जाना. ठीक है, और थर्ड लाइन में मशीनिंग की ऑपरेशन ही स्टार्ट करना. कार्तिक इज लेट एंटर्ड. ओके, एनी मोर डाउट अप टिल हेयर. फेसिंग के पॉइंट को आप रिकॉल करोगे. ठीक है, अभी इस पर हम बार बार नहीं रुक रहे. दैट पॉइंट इज दैट दिस इज रोटेटिंग एंड द टूल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. दैट्स व्हाई द एंटायर मटेरियल इज कट. और ये एनिमेशन में ही दिखाया जा सकता है, या जैसे उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा एक बॉक्स की हेल्प से बताया था ये पॉइंट है, वैसा कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से सिखाया जा सकता है. Then the third command, the fourth line is G00 -10 1. After facing, we have to do the second operation, which is plane turning. So first part is over and the tool position is here, this point. Now what will you do? You will simply move the tool away from the workpiece, right, in this direction. Okay, अब हमें ये पॉइंटर थिकनेस कम करनी होगी. ठीक है, क्योंकि इसमें ये एंड एवरीथिंग इज इरेज्ड प्रीवियस पॉइंट में जो पढ़ाया गया है. So from point 2 the tool is moving to point 3. Right now you are drawing this on a board. Whiteboard पे अभी मैं draw कर रही हूँ. You can draw it on a copy. But when you understand this concept once, you will not draw it. You will simply assume it. ठीक है, then you will imagine it कि tool किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ ड्रॉ करा है, सेकंड से थर्ड पर आया है. एक पॉइंट में और 2 पॉइंट में आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा. देन वी विल मेक आवर स्पीच वेरी फास्ट. ठीक है, अभी बहुत स्लो है पेस लेक्चर की, बिकॉज आपको शुरुआत से समझना है. 2 से फ्रॉम 2 द टूल इज मूविंग टू 3 एंड आई हैव ड्रॉन द डायरेक्शन. सो 2 पार्ट्स आर देयर, जो आपने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी में जैसे था, एक वैल्यू और एक डायरेक्शन. तो दोनों चीजों की स्टडी करनी है. तो वैल्यू आप कैसे लिखोगे पॉइंट नंबर 3 की, दैट इज अप टू यू. जैसे आपको ड्रिलिंग में समझाया था कि सिर्फ एम इज वर्कपीस से आपको दूर लाना है. ठीक है, टू अवॉइड एनी स्क्रैचिंग, फर्दर स्क्रैचिंग. ठीक है, अब जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी उसमें कोई स्क्रैचिंग ना हो, तो आप उसे पहले से दूर लाकर रोक दोगे. दिस इज द एम और दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू बिहाइंड इट? दिस इज -10 0. कैसे आया है ये? 0 0 के रेस्पेक्ट में आपने पॉजिटिव, या इसे वर्टिकल बोलते हैं, बार बार आएगा ये. ठीक है, और ये हमेशा मुंह से पॉजिटिव ही निकलेगा, क्योंकि ये अपर साइड जो है ये पॉजिटिव ही रहती है ड्रिलिंग में ज्यादातर एग्जांपल्स में. ठीक है, तो अभी से ऐसे वर्टिकल बोल देते हैं. सो दिस वर्टिकल इज माइनस एंड दिस हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड इज प्लस. तो राइट नाउ द टूल इज मूविंग हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड.
ठीक है, ऐसे आप अपना शॉर्टकट बना सकते हो कुछ भी याद करने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड आ रहा है, या सिंपली इस डायरेक्शन को देख लो। तो ये बिना बनाए तो कोई स्टूडेंट इस प्रोग्राम को सॉल्व ना करे। ठीक है, कोई कितना भी है इंटेलिजेंट, अभी आप ये प्रोग्राम इस छोटे डेजिग्नेशन से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल फाइल की फेयर फाइल पे भी बनेगा, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए आपने प्रोग्राम किस में लिखा हुआ है। ये नहीं है आपने सिर्फ पूरा प्रोग्राम लिख दिया और माइनस प्लस कुछ नहीं समझाया। ठीक है, तो ये आपने 2 से 3 पे लाए, द कोऑर्डिनेट हेयर इज 0 0। नाउ रीड इट, वर्टिकल एक्सिस पे क्या इसकी वैल्यू है, 10 है। ठीक है, कैसे लिया मैंने 10, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 20 था। ठीक है, 20 का हाफ हमने यहाँ से 10 ले लिया, सो दिस इज 10। और हॉरिजॉन्टल पे क्या वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट नंबर 1 हो, ठीक है, या फिर पॉइंट नंबर 2 हो, दोनों की ही वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ एक बार 0 लिख दिया और पॉइंट नंबर 2 भी उसी लाइन पर आ रहा है, वो किसी नई लाइन पर नहीं आ रहा है। नाउ दिस इज मैथ पार्ट। ठीक है, तो जितनी भी आप वैल्यू समझ रहे हो वो मैथ का ही पार्ट है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें स्पेंड करेंगे, लेकिन एक बार आप 4 पॉइंट में टाइम लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसकी जैसे 4 प्रोग्राम और लिखने हैं, एक ये ओरिजिनल, एक इसका प्रैक्टिस, फिर एक और टेपर टर्निंग का ओरिजिनल, और एक उसका प्रैक्टिस, तो 4 प्रोग्राम्स विल बी देयर। ठीक है, वैल्यू आपने रीड करी -10 एंड 0। अब पॉइंट नंबर 3 की वैल्यू रीड करो पहले, एंड देन उसकी डायरेक्शन रीड करोगे। ठीक है, ताकि उसका माइनस और प्लस साइन आप पुट कर पाओ। सो पॉइंट नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू, कैसे लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1। ठीक है, अभी आप ये हमेशा पिंक लाइटर देख सकते हो, बाद में आपको इमेजिन ही करना होगा और बहुत आसान लगेगा आपको कि 0 0 के रिस्पेक्ट में ही पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, हमारी मर्जी थी, हम इसे -10 0 के रिस्पेक्ट में लिखते, तो यहाँ कमांड इंक्रीमेंटल मोड होती और यहाँ कोड भी डिफरेंट चलता, 91 चलता, अभी चल रहा है 90। और यही एक मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है। ठीक है, इनफैक्ट टीचर भी कर देता है कई बार, कि वो क्या रीड करते हैं, हम पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट 2 के रेस्पेक्ट में रीड कर लेते हैं कि इसने तो अब टूल ने कितना मूव करा है आगे, 10। ठीक है, तो हम उसे -10 लिख देंगे। ठीक है, अभी आप देखो ये रेस करना पड़ेगा पूरा, वैल्यू भी। ठीक है, और ये पॉइंट्स, सो अगेन सेलेक्टिंग दिस पॉइंटर, this is on a vertical direction, the distance is 10 with respect to 0। ठीक है, अब आप पॉइंट नंबर 3 का कोऑर्डिनेट लिख रहे हो with respect to point 1। I am simply moving the cursor। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 का कोऑर्डिनेट लिखना है with respect to पॉइंट नंबर 1, हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में ही लिखना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना बना, 10, और वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आप देख लो पॉइंट 2 का 3 का विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, माइनस। ठीक है, सो -10 इज रिटर्न। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव करा है टूल ने, ये आपको अभी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप जो मूव कर रहे हो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, आपने थोड़ा दूर लाकर उसे स्टॉप करना है, सो वी आर राइटिंग 1 हेयर। सो दिस इज अ थर्ड कमांड, और इस कमांड का कोई नाम तो नहीं है, बस ये है कि कंसेप्ट ये है, दैट इज क्लियरेंस गिविंग, इट इज गिविंग क्लियरेंस, थोड़ी सी क्लियरेंस दे रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहा है वर्कपीस को टूल से, टूल को वर्कपीस से डिस्टेंस पे लाए हो फेसिंग के बाद। सो दिस कंसेप्ट इज सिमिलर इन ऑल दी 10 प्रोग्राम्स जो आप लिखोगे टर्निंग के, टेपर टर्निंग के। ठीक है, कि आपने पहले फेसिंग प्लेस कर दी, ऑपरेशन इज डन, देन यू विल डू दी क्लियरेंस, क्लियरेंस भी आपने दे दी। नाउ व्हाट विल बी द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज रैपिडली मूव टू द पॉइंट विच इज डिजायरेबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ कटिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट है जो अभी इंग्लिश वर्ड में आपने बोला है, या उसे आप समझने के लिए यहाँ समझ सकते हो कि ये थर्ड पॉइंट से उसे कहाँ तक आना है, 4th पॉइंट तक आना है, यहाँ तक आना है। नाउ द क्वेश्चन विल बी 4th पॉइंट तक यहाँ तक ही क्यों आना है, because in this program this is given that the depth of cut is 2 mm। ठीक है, यानी एक बारी में 2 mm जो मटेरियल यहाँ से कट हो रहा है, ऑल्दो ये बहुत बड़ा डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्योंकि इसमें 7-8 पॉइंट्स हैं इसलिए बड़ा बनाया गया है, बट 2 mm इज वेरी लिटिल अमाउंट।
right? So this 2 mm is to be cut from here. So this pink part अभी जो आपको ड्रॉ होके दिख रहा है, this is 2 mm. ठीक है, ये पूरा तो 2.5 है, ठीक है, अल्टीमेटली कट पूरा 2.5 होना है, बट बिकॉज द डेप्थ ऑफ कट इज गिवन इन द प्रोग्राम 2 mm. ये प्रोग्राम में जब तक कोई कंडीशन लगी हुई है, जैसे इसमें लगी हुई मिल रही है आपको कंडीशन 2 mm, तो आप उस कंडीशन को यूज करोगे 2 mm ही यूज करोगे, ठीक है, इसलिए आपने पहले लाइन में 2 mm ही लिया है. अगर प्रोग्राम में आपको स्टार्टिंग में वर्ड्स नहीं लिखे हुए मिलते कुछ भी, ठीक है, आप बोलोगे मैम इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, हम लिख ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है, आप लिख सकते हो, आप उसे अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग लिखोगे. फिर अगर मैंने दे दी ये स्पीड है, ये फीड है, राइट इट सेम वैल्यू ऑन दी प्रोग्राम, जो कि अभी सेम नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ 200 लिखा है, यहाँ 150 लिखा है, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि आपको यहाँ सेम लिखना था, लेकिन यहाँ एरर है प्रोग्राम में, ठीक है. टीचर कैन रिड्यूस द मार्क्स की इन द क्वेश्चन 200 वाज गिवन एंड स्टूडेंट इज राइटिंग 150, दैट मीन्स ही हैज लर्नड इट फ्रॉम अनदर बुक एंड ही सिंपली कॉपिंग द डायग्राम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ही इज राइटिंग. सिमिलरली अगर यहाँ डेप्थ ऑफ कट 2 mm गिवन है, यू विल यूज दिस 2 mm ओनली, ठीक है, तो इसलिए आपने 2 तक मटेरियल रिमूव करना है. अगर यहाँ पर 2 mm गिवन नहीं होती, देन यू कुड हैव रिमूव द मटेरियल इन 1 mm also, that cut this 1 mm first, then cut this 1 mm first, then again 0.5, so this 1 plus 1 plus 0.5 will be 2.5, total material will be removed, or you may remove it in lesser amounts also, ठीक है. अब क्योंकि कंडीशनल प्रोग्राम है ये, दिस इज कंडीशन गिवन, सो यू आर अप्लाइंग दैट कंडीशन. सेम प्रोग्राम को आप -1, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो. Again erasing this part, depth of cut part is must be clear to you. Any doubt write in the chat box, ठीक है. और इस प्रोग्राम के राइट साइड पे आप ब्रैकेट पुट अप करोगे और उस कमांड का मीनिंग लिखोगे, जैसे अभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको जो फाइल में अपलोड है मटेरियल गूगल क्लासरूम में, ठीक है, वहां पर सारे ब्रैकेट्स में मीनिंग गिवन है, तो वो लिखने हैं आपको. somebody was writing in the lab that how to write this program. First write the program and then in the bracket write the meaning of the command, like G90 is for linear, G90 is for absolute mode, so you will simply write absolute mode, comma, G71 for metric mode, then metric mode, ठीक है. so you will skip the verbs और phrases, आप सारे verbs और phrases हटा दोगे, it will waste time. Simply write the meaning, G94, then what is the meaning, ठीक है. तो ये आपको सभी चीजें लिखनी है, अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपली मेन पार्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है फेसिंग, बिकॉज फेसिंग इज अ न्यू टर्म टू यू, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है फेसिंग जब भी करेंगे तो -10 0 ही लिख के आना है आपको पेपर में. इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में -10 0 तक आते हुए फेसिंग हो रही थी, क्योंकि ये वर्क पीस रोटेट कर रहा है. सिमिलरली G00 -10 Z1 का आपने जैसे कुछ भी नहीं लिखा है, यू मे स्किप इट एज इट इज, ठीक है, आप इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या फिर आप इसके आगे मीनिंग लिखो, दैट इट इज मूविंग द टूल फ्रॉम टू दी -10 and 1 point ओनली, बिकॉज G01 में आपने याद किया होगा, लास्ट पार्ट क्लास में भी समझाया था, दैट द प्रोग्राम कमांड और द फॉर्मेट इज G00 एंड देन द टारगेट पॉइंट, ठीक है. तो वो रिपीट इस प्रोग्राम में हो गया है, जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था. G00 के बाद हमेशा टारगेट पॉइंट आता है, ठीक है. सो दिस टारगेट पॉइंट विल बी हेयर, सो दिस इज -10 and Z1. So now again erasing all the blackboard, whiteboard. No doubt is written. Okay, moving to next line. -10 1, this point was there, here point number 3 is written, so this is the point. Now from 3 it is moving to 4. Why so? Because this material is to be removed, ठीक है. अभी
टूल फर्स्ट यहाँ था, फर्स्ट पॉइंट, देन टूल यहाँ तक गया है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ तक आया है, फोर्थ पॉइंट उसे यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, क्यों प्लेस करना है? बिकॉज आफ्टर इट हैज टू मूव लाइक दिस, उसे इस डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड में। ठीक है, ये एरो है, तो इसे फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट तक पूरा ट्रेवल करना है। ओनली देन दिस मटेरियल विल बी कटिंग। सो मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस पॉइंट। जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, आप 2 बार में उसको स्प्लिट करोगे। दैट द प्रोग्राम इज रिटन इन द एब्सोल्यूट मोड। सो यू राइट इट फ्रॉम दिस 0 0, द वर्टिकल डिस्टेंस इज -2। ठीक है, अगर ये आपने 0 0 माना हुआ है रेफरेंस, तो इस रेफरेंस, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बना? ठीक है, अपर डायरेक्शन में आप देख रहे हो माइनस लिखा है, तो माइनस, और वैल्यू कितनी बनी? 2 बनी, क्योंकि 2 डेप्थ ऑफ कट गिवन है। और z कितना वैल्यू है? ठीक है, z की वैल्यू इस पूरी लाइन पे ही, ये जो आप लाइन देख रहे हो 0 है, तो इसलिए बनी z इज 0। सिंपली प्लेसिंग करिए आपने, या पोजिशनिंग करिए टूल की इस पॉइंट पे, और कोई भी कटिंग नहीं हुई है, तो आपका जो यहाँ पर कोड है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोड यूज किया है G0 0 दोनों लाइंस में। नो कटिंग इज बीइंग डन, सिंपली मूविंग द टूल फ्रॉम हेयर एंड देयर। ठीक है, पीडीएफ फाइल, अच्छा ये जो आपको लाइंस है ये पीडीएफ फाइल में गिवन है। ठीक है, फर्स्ट में था फेसिंग ऑपरेशन गेट्स कंप्लीटेड, उसके बाद है आफ्टर फेसिंग 1 mm एक्सियल क्लियरेंस इज गिवन, देन अगली लाइन में है डेप्थ ऑफ कट 2 mm इज गिवन। ठीक है, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में कि डेप्थ ऑफ कट 2 mm कैसे दे दी इस लाइन में। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ पोजिशनड किया है, तो आप गिवन को कट करके पोजिशनड वर्ड लिखो। अगर इंग्लिश टर्म को देखा जाए तो गिवन से लग रहा है कि वो डेप्थ ऑफ कट की कट ही हो गया है पूरा मटेरियल, तो मटेरियल कट अभी नहीं हुआ है, आपने सिंपली कर्सर यहाँ पे रखा है, टूल को यहाँ पे रखा है। सो डेप्थ ऑफ कट इज पोजिशनड। ठीक है, वहाँ लाइन अगर आप एक बिगिनर पढ़ेगा तो उसे कंफ्यूजन अराइज होगी। सो यू विल सिंपली रिप्लेस इट लाइन दैट डेप्थ ऑफ कट इज पोजिशनड। पोजिशनिंग आपने यहाँ से कर दी कि अब यहाँ से शुरुआत होनी है मटेरियल की कटिंग की, और कितनी मटेरियल कटेगा एक बारी में जब टूल मूव करेगा? 2 mm कटेगा, बिकॉज दिस एंटायर इज अ सॉलिड पार्ट। ये जो पिंक कलर की लाइन्स हैं ये सॉलिड है इस समय। लास्ट में आपको ये सबको हटाना है, तो टूल इस तरह से मूव करते हुए आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मटेरियल अपने आप कट होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा मटेरियल आप एक कट में वैल्यू रखोगे, जैसे 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, उतना ही चांसेस ज्यादा होंगे टूल के डिस्टॉर्शन के और वर्कपीस के डिस्टॉर्शन के। ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप में आपने बहुत ज्यादा मटेरियल कट कर दिया, तो इसलिए आप जैसे कटिंग भी करते हो नॉर्मल, तो स्लाइसेस में करते हो, तो वो स्लाइसेस में क्या है, एकदम प्रॉपर आता है और फिनिशिंग आपको मिलती हुई चली जाती है। ठीक है, अगर एक कट में थोड़ा प्रॉपर इम्प्रॉपर है तो वो दूसरे कट में रिमूव हो जाएगा, तीसरे कट में रिमूव हो जाएगा। अगर आप एक ही कट में सब कुछ ऑपरेशन कर दो, फिर 2.5 तक ही दे देते हैं, डायरेक्ट टाइम सेव करते हैं, प्रोग्राम भी छोटा बनेगा। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे जो कट आ गया एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, गलत हो गया कुछ, तो वो फिर एडिट नहीं हो सकता क्योंकि वो मटेरियल वहां से कट चुका है। ठीक है, एक्स्ट्रा है तो ठीक है, आप उसकी फेसिंग कर दोगे, इस फेस की फेसिंग करने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक टूल को चला दोगे एक बार। ठीक है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आ गया, अगर ज्यादा कट गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपका पूरा वर्कपीस ही वेस्ट हो गया। ठीक है, और रिक्वायर्ड डायमेंशन आपको नहीं मिली। सो सिंपली रेजिंग दिस पार्ट, दिस इज -2 0, फोर्थ पॉइंट। नाउ अगेन अ क्वेश्चन इज देयर, नहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखोगे? अच्छा, स्टेप नंबर 6 कौन सा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 नंबर स्टेप क्यों नहीं लिखोगे? देन देयर इज एन प्रॉब्लम। अभी आप समझ लो 6 स्टेप तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने नंबरिंग नहीं करी, जैसे ये 1 है, ठीक है, तो N1 आना था यहाँ पे, तो अब ये N1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ में आपने सिर्फ ब्रैकेट में, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पीडीएफ फाइल में, डेप्थ ऑफ कट इज गिवन, तो गिवन को रिप्लेस कर देना पोजीशन, कि डेप्थ ऑफ कट को पोजीशन कराए कि अब टूल यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ से स्टार्टिंग करेगा -2 0 से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? -2 0। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, शायद इसी के बारे में आप पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन जो डाउट आया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप क्या लिखोगे? क्यों लिखोगे? रीजन मैंने बताया, क्योंकि यहाँ से टूल मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में।
ये बैकवर्ड डायरेक्शन है जैसे, ठीक है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, दिस इज द ओरिजिन। बैकवर्ड फॉरवर्ड हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे माइंड में यही डायग्राम रहता है हमेशा, तो मैं, ठीक है, इसके आगे जा रहे हो इस 0 0 के, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसके बैकवर्ड आ रहे हो, अगेन देखो आदिल इज एंटरिंग सो लेट, माइनस z आ गया, ठीक है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन इसे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। वर्बली कुछ भी बोलो बट दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और आपने एक बार साइन यहाँ माइनस दे रखा है तो आप इसे माइनस ही पुट करोगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए यहाँ तक उसे स्टॉप करना है। ऑलवेज राइट द टारगेट पॉइंट, अभी मैंने बड़ा बड़ा यहाँ डायग्राम में लिखा था कि G00 के आगे टारगेट पॉइंट आता है, ठीक है, G01 के आगे टारगेट पॉइंट आता है। तो अब आप पुराने पॉइंट को भूल जाओगे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और अब आप फिर एक स्टार्टिंग से सोचोगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग मोड चल रहा था, G90 चल रहा था, ठीक है, एब्सोल्यूट मोड चल रहा था। एब्सोल्यूट मोड में 0 0 के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट ट्रीट करोगे 5th पॉइंट के। अगर आपने ये क्वेश्चन रेस किया है तो आप आंसर भी सुनो, ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 जो बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 1। वाई सो, बिकॉज वी आर राइटिंग द प्रोग्राम इन द एब्सोल्यूट मोड, ठीक है। अब आप रीड भी कर लो इसकी वैल्यू, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। दिस इज द रेफरेंस, दिस इज द ओरिजिन। रेफरेंस मतलब इसी को ओरिजिन आप मान रहे हो इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे वर्कपीस में, ठीक है। तो अब इस 0 0 के रेस्पेक्ट में ऊपर देखो, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है वर्टिकल, ठीक है। पहली बात तो ऊपर है, ठीक है, अपवर्ड को आपने क्या लेना है, माइनस, ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ आ गया, ये वाला सिंबल, ठीक है। और वैल्यू कितनी लेनी है, 2, ठीक है, क्योंकि ये 2, इस पॉइंट की भी 2 है वर्टिकल वैल्यू, और एक ही लाइन पे, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये 2 रही, ठीक है, तो ये -2। अगेन मैथ पार्ट, ये z कैसे लिखा आपने, ठीक है, मैथ पार्ट क्यों है, क्योंकि आप मैथ ही यहाँ से स्टडी कर रहे हो, ये z है, ठीक है। आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लाए हो, इधर से 0 से लेके, दिस इज 0। ये बिगिनर को हमेशा ये डायग्राम बनाना है, बिना इसके समझना नहीं है आपको, ठीक है, और आज ही समझोगे इसको इस बार से, ठीक है। तो ये यहाँ से माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, ठीक है, कहाँ तक आया है, कहाँ तक आया है, दैट टारगेट पॉइंट इज दिस। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस, 15, ठीक है, क्योंकि ये 0 0 के रेस्पेक्ट में 15 यहाँ तक डिस्टेंस है। आप चाहते, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते थे 1 5, ठीक है, और फिर साइन लगाओ, तो वो सब हर बार आप फिजिबल नहीं है कि आप लिखते रहो, क्योंकि ये डायग्राम एक बनता है, ठीक है। आप उसे इतना डर्टी नहीं बना सकते हम कि बाद में आपको खुद को कुछ भी समझ में ना आए और कुछ नहीं दिखे, ठीक है। तो इसलिए अब आपको क्लियर हो गया कि वैल्यू और कोऑर्डिनेट के लिए आपको हमेशा इस डायग्राम को देखना है। सो व्हेनेवर यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ टू दिस डायग्राम, ठीक है, जितनी बार आप उसे स्टॉप करके देखोगे उतनी बार आप आंसर की एक्यूरेसी बढ़ा लोगे, ठीक है। आप ये मत सोचो अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हो, बिगिनर, ठीक है, क्योंकि अब आपका वैल्यू भी कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि आपने सोच लिया वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट मोड में लिखनी है इस पूरे प्रोग्राम में। क्योंकि अभी मैं भी, ठीक है, थोड़ा सा मेरा डाइवर्ट हुआ माइंड और मैंने इसकी रीडिंग रीड करनी थी, 4th से मैं रीड कर लेती, ठीक है, तो कुछ और वैल्यू आ रही थी। अब मैं 0 0 के रेस्पेक्ट में रीड कर रही हूँ तो कुछ और वैल्यू आ रही है, ठीक है। कुछ और कैसे आ रही है वो आप देख सकते हो। इसमें z की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, और इस एक्सिस में z की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से आपने लेनी है 0 0 से। एक पॉइंट आपका और क्लियर हुआ, ये वाला x -2, ये वाला, ठीक है। तो दिस the concept behind it that it is doing turning for a length 15 mm, and what do you mean by turning, it is cutting the material of a cylindrical workpiece as it is being rotated, ठीक है। ये जो वर्कपीस है हमेशा ये स्टैटिक नहीं है, इसको इमेजिन भी करना है, साथ के साथ ये रोटेट कर रहा है। टूल यहाँ है, ठीक है, तो जब ये रोटेट करे जा रहा है, ठीक है, और टूल ऐसे धीरे धीरे आते जा रहा है, ठीक है, और रोटेशन होती जा रही है, तो धीरे धीरे ये सारा मटेरियल क्या हो रहा है, कट हो रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर ये स्टैटिक रहता, जैसे ड्रिलिंग में टूल वर्कपीस जो है, ठीक है, वो स्टैटिकली ऐसे रखा गया था टेबल पे, तो वो स्टैटिक ही एक ही पॉइंट से एक पॉइंट तक कटिंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन बिकॉज दिस वर्कपीस इज सिलेंड्रिकल एंड इट इज रोटेटिंग, दैट्स व्हाई द मटेरियल फ्रॉम दिस एंटायर
डायामीटर, ये डायामीटर है 20 इनिशियल, ठीक है, इसकी एनिमेशन मिलती है, ठीक है, आई विल अपलोड, नहीं मिली तो फिर ऐसे ही समझना होगा, दिस इज 20। सो दिस एंटायर 20 डायमीटर में मटेरियल जो है इन दोनों साइड से कट हो रहा है। आप ये नहीं कहोगे एक साइड से कट हो रहा है क्या, ठीक है, तो एक साइड से कट नहीं हो रहा, क्योंकि दिखता तो एक साइड से ही कट होता हुआ दिख रहा है इस 2D डायग्राम में, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये साइड भी इधर से ऐसे रोटेट करती हुई आ रही है, फिर वो ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर ऐसे रोटेशन होती जा रही है कॉन्टिन्यूसली। सो दिस एंटायर मटेरियल इज बीइंग कट। सो दिस इज दी अगेन द इमेजिनेशन पार्ट और द एनिमेशन पार्ट, ठीक है। अभी कुछ टूल्स हमने सीखे एनिमेशन के, मे बी आई विल अप्लाई इट और वी विल यूज एनी एनिमेशन विच इज डायरेक्टली अवेलेबल। नहीं एनिमेशन मिल रही तो बहुत बात यहाँ पर सिंपल है, ठीक है, कि दिस इज रोटेटिंग एंड व्हेन इट इज टूल इज मूविंग फ्रॉम देयर टू देयर दिस डायरेक्शन, सो द मटेरियल इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम बोथ द साइड, दिस साइड plus this side, so both the sides material removal is there, because this will be the question in the end of the lecture, how the material is removed from two side। मैम you just remove the material, आपने तो एक ही साइड से रिमूव किया था यहाँ से डायग्राम में, ऊपर का कभी तो पिंक पार्ट दिखाया नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज दिस इज कैन बी शोन इन दी एनिमेशन, ठीक है, लेकिन अभी आप इमेजिन कर सकते हो ये रोटेशन हो रही है और सिलेंड्रिकल से दोनों साइड से मटेरियल कट होगा, ठीक है, कभी भी एक साइड से मटेरियल कट नहीं होगा। इस बात को आप एक बार अपने कॉपी पे खुद बना के सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इतना मटेरियल कट करना है हमें, तो ये कैसे हो गया, बिकॉज दिस इज रोटेटिंग फ्रॉम बोथ दी साइड, और एक टाइम पे 2 mm ही कट होगा, ठीक है, दोनों साइड से, ये नहीं है इधर आप 2 ले लो और उधर 3 ले लो, ठीक है, तो ये 2 एक बार हमने फीड करा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस 2 को आप 1 भी कर सकते हो, 0.5 जो आप कर सकते हो। यस, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ नेक्स्ट पार्ट, -1 0। सो आफ्टर द 4th point 5th point is clear to you, ठीक है। नाउ यू हैव टू अगेन इमेजिन वेयर टू मूव द टूल, ठीक है, अब आप इसे किस पॉइंट पे लेके जाओगे टू स्टार्ट द मशीनिंग, ठीक है, तो डायग्राम शुड बी क्लियर कि ये मटेरियल अब यहाँ से कट चुका है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा क्या दोगे, हमेशा कटिंग के बाद थोड़ा सा क्लियरेंस दे देते हैं, वर्क पीस को टूल से दूर करते हैं या टूल को वर्क पीस से दूर करते हैं, ये बोल दो आप, ठीक है। तो कटिंग जब भी हो गई, जैसे आपने देखा है यहाँ पे फेसिंग हुई थी, फेसिंग के बाद एक क्लियरेंस का एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देनी है टू अवॉइड एनी स्क्रैचिंग और टू मेक द क्लियरेंस वैल्यू। अब यहाँ टर्निंग हुई, ठीक है, तो टर्निंग के बाद भी आपको एक क्लियरेंस वैल्यू देनी है, यू हैव टू मूव द टूल अवे फ्रॉम द वर्क पीस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं ले जाओगे, सिंपली एक सर्टेन वैल्यू पे लाके उसे स्टॉप कर दोगे। टर्निंग के बाद आपको ये जो स्टेप है G00 x-1 Z0, so the meaning is it is radial clearance 1 mm and tool comes to the specified position, ठीक है। ये कंसेप्ट फिर आपको समझ नहीं आते जब ये प्रोग्राम की लाइंस बंद हो जाती हैं या बुक्स में इतना लिखा हुआ नहीं मिलता, तो ये कंसेप्ट आपको वहीं से एडिट करना है। विकास इज वेटिंग, ओके, एडमिटेड। टर्निंग के बाद भी आपको एक क्लियरेंस की वैल्यू देनी है। नाउ इट इज अप टू यू, यू कैन राइट इट इन 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स, ठीक है, बट जितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखो उतना अच्छा है। प्रोग्राम हमारा ही, ठीक है, इसमें इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ लाइंस और बार बार सोचना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपने उसे पर्टिकुलरली एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे लाके क्लियरेंस दी है फ्रॉम पॉइंट नंबर 5। अब ये पिंक मटेरियल यहाँ पर रहा नहीं है, ये पूरा इरेज हो गया है, ठीक है, इसलिए इसे हम इरेज कर रहे हैं कि ये मटेरियल यहाँ से कट हो चुका है पूरा, ठीक है, ये सारी डायरेक्शंस भी कट हो रही हैं, इरेज कर रहे हैं सभी। फिर अब आपको यही टारगेट लाइन रहेगी जो समझनी है इस समय, ठीक है, वैल्यू वाला पार्ट भी समझ में आ गया है। अगेन ड्रॉ, दिस इज -1 0, सो फ्रॉम पॉइंट नंबर 5 दिस स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है, अब जो ये स्पेस है ये मटेरियल से पहले भरी हुई थी, वो मटेरियल कट चुका है, ठीक है, तो अब आप इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट
जो कोडिंग है वो चेंज कर दोगे, क्या ले आओगे उसे, G0 0 ले आओगे, बिकॉज नाउ कटिंग इज नॉट टू बी डन। सो G0 0 तक लिया है, एंड किस पॉइंट तक लाना है, 1 तक नहीं, आप उसे यहाँ तक लेके आए हो, -1 0 तक। कैसे इसकी वैल्यू फिल करी है, 0 0 के रेस्पेक्ट में रीड कर लो, ये डिस्टेंस 1 है और Z इस पूरी लाइन पे 0 है, सो -1 0 इज दी पॉइंट हेयर। ठीक है, ये लाना जरूरी है क्योंकि अगले स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, या एक क्लियरेंस देने के लिए ये स्टेप जो है जरूरी है। किसी का क्वेश्चन शायद यही था, व्हाट इज दी स्टेप नंबर 6 जरूरी क्यों है। ठीक है, मैं उसको लाइन नंबर से गिन रही थी तो उसके हिसाब से ये बनता है। ठीक है, लेकिन वो पूछना शायद 7 नंबर चाह रहे हैं। विकास इज राइटिंग, टाइम पर लेनी है क्लास, आई होप यू टेक द राइट डिसीजन। यस विकास, यू योरसेल्फ आर एंटरिंग एट 48, 16:48 is the time. We will discuss it later related to time part. ठीक है, अभी आप प्रोग्राम पार्ट समझो। -2.5, ठीक है, इस पॉइंट तक आ गया है, -1 0, देन you have to move the tool to point number 7. ठीक है, because now you have to place the tool to that position from which cutting has to be started. ठीक है, अब आपको टूल वहाँ पोजीशन, ये सारा मटेरियल यहाँ से हट चुका है, अब टूल को वहाँ पोजीशन करना है जहाँ से मटेरियल अब नया कटिंग शुरू होगा। कितना रहता है कटिंग के लिए, सिर्फ ये वाला पिंक पार्ट, 2 तो पहले ही कट हो चुका है। ठीक है, तो ये 0.5 कट करने के लिए पहले आप उसे थोड़ा दूर लेके गए, क्लियरेंस दी, उसके बाद आप उसे 7th पॉइंट पे लाके स्टॉप करोगे, जो कि बिल्कुल टच कर रहा है वर्क पीस को यहाँ पर, इस पॉइंट पे 7। ठीक है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, रीड इट विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, माइनस, because from this origin the coordinate value is upward, so -2.5, 2.5 is this value। कैसे आई वो आपने देखी थी, 20 - 15 is 5, then 2.5 2.5, so -2.5, then Z is 0 because इस entire line पे 0 0 ही आपका Z0 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, देन ये आपने क्या, 7th का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको PDF फाइल में लिखा है, वो फाइल में भी लिखना है दैट इट इज दी पोजिशनिंग और इट इज, ठीक है, वहां पे लिखा है डेप्थ ऑफ कट इज गिवन, डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm इज गिवन, यू मे रिप्लेस इट, डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm इज पोजिशन। अभी सिर्फ पोजिशन यहाँ पे आपने लाके रख दी है, पोजिशन, टूल की पोजिशन ये है कि अब जो कटिंग होगी वो पूरा 2.5 का मटेरियल कट कर देगी। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ आप लिखोगे। देन इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली मूव द टूल फ्रॉम पॉइंट नंबर 7 टू पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 तक लाने के लिए आपको 8 की कोऑर्डिनेट्स की फिलिंग करनी है। ठीक है, तो फिलिंग करने के लिए दोबारा से ये कोऑर्डिनेट रीड करो, क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू 0 0, वर्टिकल में कितना होगा। ठीक है, पहली चीज वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये अगर ये 0 0 है, ठीक है, और ये पॉइंट है, तो दिस पॉइंट इज अपवर्ड, सो वैल्यू इज -2.5 वर्टिकल में। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कितना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इस पूरी लाइन पे तो 0 कोऑर्डिनेट रहेगा Z का। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट तक आते आते कितना हो जाएगा, ये रही वैल्यू 15। डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड, इस डायग्राम में देखो बैकवर्ड के लिए डायरेक्शन के लिए माइनस लग रहा है, सो -15। एक बार ये लेबल हो गया, देन राइट, जब आपने लिखना है इसको तो अब कमांड G0 0 नहीं रहेगी। ठीक है, कमांड विल बी G0 1 बिकॉज नाउ it has to face this material, it has to cut this entire material, so linear interpolation has to be done। linear interpolation means tool has to cut the material along a straight line। ठीक है, वो यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है और वो कट करेगा सारा मटेरियल, सो G0 1 and the value, so it is again turning for length 15 mm। एक बार दूसरी टर्निंग हो गई, किसी बुक में आपको ये टर्निंग वर्ड नहीं लिखा होता, लिखा होता है फर्स्ट कट, देन सेकेंड कट, थर्ड कट, फोर्थ कट। ठीक है, सो डिफरेंट नंबर ऑफ कट्स कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन दिस वैल्यू, -2.5,
15, ठीक है। अब यही आपका प्रोग्राम का एम था, दैट यू हैव टू कट दिस मटेरियल एंड बिकॉज दिस एंटायर वर्क पीस इज रोटेटिंग, वर्क मटेरियल फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस विल बी कट साइमल्टेनियसली, ठीक है। यू विल ट्राई टू इमेजिन दिस डायग्राम इन अ रोटेटिंग कंडीशन और वॉच द एनिमेशन, ठीक है। अदरवाइज आपको क्लियर है, ठीक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है, लेकिन ये वर्क पीस की रोटेशन हो रही है तो मटेरियल इधर से भी रिमूव होगा, ठीक है। ये जो पिंक कलर आपने शेड करे हैं, देन अगेन इरेजिंग दिस पार्ट, लास्ट लाइन आपकी सिंपली रहेगी रिट्रैक्ट। यहाँ से पॉइंट तक आने के बाद जो प्रोग्राम की कंडीशन थी स्पेसिफाई हो गई। अगेन आप लास्ट में क्या कंसेप्ट है कि उसे टूल को वर्कपीस से दूर लाकर कहीं पर स्टॉप करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाके स्टॉप करना है, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट यहाँ लाके स्टॉप कर देगा इस पॉइंट पर। पहले ये इरेज करते हैं, बोर्ड काफी ऑक्यूपाइड है तो इसमें पॉइंट कहाँ ड्रॉ है, ठीक है, वो आपको नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाके इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। somebody will stop it at 0 0, ठीक है। बुक ने स्टॉप करा है 0 0 पे, नॉट नेसेसरी आप उसको 0 0 पे लाके रोक दो, ठीक है, लेकिन मैंने बोला 0 पे लाके रोकोगे अगेन अ चांस ऑफ फॉलिंग ऑफ द टूल ऑन द वर्क पीस। तो 0 0 के बाद एक अपना अलग से स्टेप बना के आप इसे कहीं और लाके छोड़ सकते हो। 10, ठीक है, जेड में आपको 10 दे दिया, ठीक है, या 20 दे दो, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोऑर्डिनेट को आपको वर्कपीस के एरिया के अंदर नहीं रखना है, ठीक है, उसके दूर ही रखना है, तो प्लस वैल्यू देनी पड़ेगी थोड़ी इधर, क्योंकि दिस इज दी 0। ये जो डायग्राम था एरो या टारगेट जिसे कह रहे हो आप, ठीक है, टारगेट का तरह दिख रहा है, ये आप यहाँ ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। तो अब आपको जो वर्कपीस को लाके रोकना है टूल को, ठीक है, एक बच्चा बोलेगा यहाँ लाके रोक देते हैं, एक बोलेगा यहाँ लाके रोक देते हैं, तो यहाँ लाके रोकोगे तो फिर वो टूल इसी पे फॉल करेगा अल्टीमेटली। हटाते समय हो सकता है वर्कर से हट के यहाँ गिर जाए, ठीक है, या टच हो जाए, एरिया स्क्रैच हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इससे दूर लाके का मतलब है इस पूरे एरिया से दूर करना है उसे। तो ये वैल्यू जो है उसकी साइन जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पॉजिटिव में उसको डायरेक्शन देते हुए, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है इसमें, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे 20 वैल्यू दोगे तो वो यहाँ आके रुक जाएगा कहीं पर। एक बार इसको इरेज करके सेकंड डायग्राम हम फास्ट ले लेंगे। अब एनी डाउट तो आप लिख दो इसमें चैट में, 1 मिनट का टाइम है। ये सर्कुलर तो नहीं पढ़ाना, अब कौन सा पढ़ाना है, टर्निंग, टेपर, अच्छा डाउट तो पहले से ही लिखा हुआ है। एन यानी इंक्रीमेंटल डायमेंशंस में ज्यादा जल्दी होगा, यस अजय इज राइटिंग। हाँ ये गुड क्वेश्चन इन्होंने किया है और आंसर भी खुद ही दे दिया है, ठीक है। तो ये अच्छा सजेशन है, इंक्रीमेंटल मोड में हमेशा प्रोग्राम ज्यादा अच्छा, ज्यादा आसानी से बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि मुझे आपने देखा है कितना आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटा हो गया समझाते समझाते आपको हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट और वैल्यू, क्योंकि मैं हमेशा उसे रीड करती हूँ इस 0 0 के रेस्पेक्ट में, राइट। सो अगेन आई हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, वेयर इज द 0, ठीक है। आप कितना भी नहीं करो फोकस, आपको करना ही पड़ेगा कि 0 0 क्या है, क्योंकि आपने कहीं पे भी किसी एक भी पॉइंट पे गलत लिख दिया, जैसे 5 पे, हर बार आप सही हो जाओगे, ठीक है। इफ यू थिंक यू आर इनफ अंडरस्टैंडिंग आपको है कि आप जल्दी से लिख पाओ बिना ये बनाए, बिना ये सोचे, तो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। पॉइंट नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, कहीं ना कहीं आपसे एक गलती होगी और वो आगे की सारी प्रोग्रामिंग को गलत कर देगा, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगी एक बार, फिर आप उसे चेंज करने के लिए पूरा प्रोग्राम स्टडी करोगे और सारे कोऑर्डिनेट्स बनाओगे। सो बेटर आइदर टू राइट इन एब्सोल्यूट मोड, यूज दिस डायग्राम, हेल्पिंग डायग्राम, एंड देन रीड द प्रोग्राम फ्रॉम 0 0। अगेन इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बहुत मुश्किल तो नहीं है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है हर बार 0 0 को देखना। जिसको टाइम की आदत हो गई है, ठीक है, वो टाइम कम लगाने की आदत है, ठीक है, तो वो कम टाइम लगा के लिख देगा। लेकिन एज अ बिगिनर आप उसे बेटर था आप उसे पहले से ही 91 में लिखते, ताकि अभी जो मैं बता रही हूँ कि पॉइंट 7 से अगर 8 पे मूव किया है, एक एग्जांपल ले लो, 7 से 8 पे मूव किया है, ठीक है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा फिर 0 0 पे आके देख रही थी। अब मुझे सिर्फ इतना देखना होता कि इसने यहाँ पर था ये, ठीक है, तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ठीक है। अब उसे z कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ है मुझे सिर्फ इतना देखना था, और x कोऑर्डिनेट तो सेम रहा, ठीक है, क्योंकि जब 7 से 8 पे आया है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी चेंज हुई है, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन है इस पे x कोऑर्डिनेट सेम है, तो अब आप चाहे लिखते हैं -2.5 2 बार लिखो,
या सिर्फ एक जो चीज चेंज हुई है ठीक है. सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बेटर टू राइट इन द प्रोग्राम बाय द इंक्रीमेंटल मोड. इसका प्रैक्टिस प्रोग्राम आप पढ़ोगे विद द हेल्प ऑफ, मैं आज अपलोड करूंगी. ठीक है, वो आप इंक्रीमेंटल से स्टडी करोगे और लैब में कल समझा देंगे. ठीक है, पहले आप उसे घर से समझ के रखो
नहीं आता है, ठीक है, तो लैब में उसे समझाते हुए प्रैक्टिस प्रोग्राम ड्रिलिंग का भी और टर्निंग का समझा देंगे। ठीक है, तो अभी ये अच्छा क्वेश्चन था एक। अब एक क्वेश्चन राउंड नहीं लेंगे, ठीक है, अब आपको इसे फास्ट समझना है टेपर टर्निंग को, बिकॉज ओनली, ठीक है, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, और लेट अस सी कर पाते हैं तो हम कर पाएंगे। You will get the idea and you will write the program by yourself. This is the diagram of taper turning. This is the aim to prepare a part program for the given taper turning operation on a lathe in incremental mode. तो अब यहाँ पर मोड भी बदल गया है और प्रोग्रामिंग का नाम भी टेपर टर्निंग हो गया है. That is this inclined portion is to be removed. So tool this tapered portion is to be removed. ठीक है, ये जो ट्रायंगल बना है, टेपर मीन्स दिस ट्रायंगल, ये जो आपने इसमें देखा है पिंक कलर का, ठीक है, दिस एंटायर मटेरियल इज टू बी रिमूव्ड एंड दिस इज लीनियर मोशन. ठीक है, तो ये प्लेन टर्निंग से ही रिमूव हो सकता है. तो इसमें दो तरह के ऑपरेशन है, टर्निंग एंड टेपर टर्निंग. व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम इज रिटन हियर. ठीक है, N01 G91 we will take it fast means the code and the meaning, because we have spent 1 hour 15 minutes on this program, so now I'm able to understand this concept. N01 line number 1, G91 means incremental mode, means all the program will be all the coordinates will be read with respect to the last position of the tool. ठीक है, टूल की जो भी लास्ट पोजीशन होगी वहीं से आप रीड करोगे, बार बार जीरो पे जाके नहीं देखोगे क्या था. ठीक है, G71 is for metric mode, dimensions are in mm. M03 spindle start clockwise, spindle speed 900 rpm, EOB end of block. हर लाइन के स्टार्ट एंड में ये n नंबर और EOB नंबर आप खुद ऐड करोगे. N02 G00 Z0 Z0 लिखा है. ठीक है, यहाँ पर आपने पॉइंट नंबर 1 ये लेबल कर रखा है रेफरेंस पॉइंट. अगेन दिस पॉइंट इज लेबल्ड एज 00 रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट. नाउ फ्रॉम दिस यू आर मूविंग, यू आर प्लेसिंग द टूल अप टिल दिस पोजीशन. ठीक है, आपने एक टूल के कॉर्नर को टच किया है. अभी जो ये मटेरियल है ये आपको रिमूव दिख रहा है, बट इन एक्चुअल अभी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, तो ये पूरा प्रेजेंट है. ठीक है, इसे भी दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक में टेपर टर्निंग करेंगे, एक में टर्निंग करेंगे. सो द टूल इज रैपिडली मूविंग टू दिस 00 कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट 1. नेक्स्ट लाइन G01, this line G01 x is -25. this is the facing operation. फीड की वैल्यू आप पहले लिख दो, बेटर है. नहीं लिखी तो इसके साथ भी लिख सकते हो. डिफरेंट वेज आपको डिफरेंट प्रोग्राम की हेल्प से सिखाया जा रहा है. कोई ज़रूरी नहीं था एफ को वहीं पर लिखना था, आप यहाँ भी लिख सकते थे, क्योंकि फेसिंग एक्चुअल में इस लाइन पे हो रही है. ठीक है, तो आप इस लाइन के साथ लिख दो. आप चाहते हो नहीं पहले ही सारा लिखने का काम करना है, इनिशियल लाइन, ठीक है, तो वो पहले ही आप लिख कर ख़त्म करो. F150. ठीक है, अब सिंपली आप उसे बताओगे दैट द टूल हैज़ टू मूव लीनियरली and cutting the material up till the point -25. so from this point to this point. ठीक है, इस पूरे पॉइंट तक आने के लिए क्या कोऑर्डिनेट रहेगा अब आप रीड करो. पहली बार में तो आपको जीरो के रेस्पेक्ट में रीड करना है. ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में, लास्ट पोजीशन ऑफ द टूल जो है अभी तो वो जीरो ही है. ठीक है, सो लास्ट पोजीशन ऑफ द टूल ये था. अब उसे कितना आगे आया है, वो कितना अपवर्ड आया है, -25. ठीक है, और z कोऑर्डिनेट 0 रहा. सो दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू. देन अगेन इसमें एक चीज मिसिंग है, वो डायग्राम. ठीक है, दैट दिस इज -z. तो ये बनाना था आपको कहीं. ठीक है, नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? अगेन यूजिंग द पॉइंटर, बिकॉज यू आर watching the pointer part only. From this point, because the workpiece is rotating, when the tool is moving from this to this entire face, vertical face जो है पूरी का मतलब है this 50 diameter वाली face, ये पूरी surfacing हो जाएगी इसकी. that means it is made flat. then after it सेम स्टेप है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है पूरा प्रोग्राम. उसके बाद आपको फेसिंग के बाद क्या करना था, क्लियरेंस देनी थी. दैट यू आर रिमूविंग द टूल अवे फ्रॉम द वर्क पीस बाय अ डिस्टेंस 1 2. ठीक है, वो आपकी मर्जी है. तो अभी हमने 1 ले लिया यहाँ पर. z इज 1. ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाओगे, बिकॉज फिर एकदम से जो सडन कोलिजन होगा, चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन विल बी देयर. सो z इज 1 एंड
दिस इज -25। ये आपने कहाँ से निकाला है? एक बार वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 50 का हाफ ये 25, ठीक है, ये 25, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज 25 -25। और इस पूरी लाइन पे z कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है, तो ये 0 आया। ऐसे ही इस कोऑर्डिनेट के लिए आप देखोगे ये पॉइंट कहाँ से आया है, ठीक है। अभी मेरी मिस्टेक क्या हुई है, मैं 0 के रिस्पेक्ट में सोचने लग गई थी इसके कोऑर्डिनेट, जबकि प्रोग्राम इंक्रीमेंटल में चल रहा है, तो उसकी मुझे 0 देखने की जरूरत नहीं थी। सिंपली मुझे ये देखना है फ्रॉम दिस 2 टू दिस 3 व्हाट इज द डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस साइन आता है z का इस डायग्राम से, तो z का आया +1। प्लस आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते तो सिंपली 1 लिख दो। एंड x की वैल्यू है -25, ठीक है। वो कैसे आई है? क्योंकि इस पॉइंट पे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो पहले से इन दोनों पॉइंट्स का सेम है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या चेंज हुई है। यू ऑलवेज हैव टू रीड दी चेंज, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो, जैसे वहाँ आपने लिखा था टारगेट वैल्यू, यहाँ आप लिख सकते हो चेंज। चेंज मीन्स विच वैल्यू इज चेंजिंग, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये इरेज कर रहे हैं सारा, वो ही आप लिखोगे, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या लिख दिया आपने? z इज 1 एंड -25। क्लियरेंस देने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? आपको सिंपली टूल को एक फार्दर पॉइंट पर नहीं, आपको उस पॉइंट पर ले जाना है जहां से आपको कटिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली, जैसे अगर मान लो इधर 4th पॉइंट पे ले आए, तो या आप इस पॉइंट पर भी ला सकते थे। पुराने प्रोग्राम में तो मैंने डायरेक्ट इस पॉइंट पर रखा था, ठीक है, टच कर रहा था इस पॉइंट पर, वो अभी यहाँ पर रखा है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि जरा सा एक डिस्टेंस है। 1 mm तो बहुत ही छोटा है, यहाँ बहुत बड़ा बना के दिखाया गया है, लेकिन 1 mm दूर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसे यहाँ तक लाकर रोक सकते हो, ठीक है, टू दिस पॉइंट। अब क्या चेंज आया, फिर से लिखो क्या चेंज आया यहाँ पे। z तो सेम ही रहा। इस पूरी लाइन को, एक लाइन देखो, रफ लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, दिस इज अ डमी और रफ लाइन। प्योर मैथमेटिक्स, इस पूरी लाइन पर z 1 ही है, चाहे आप इस पॉइंट का ले लो चाहे इस पॉइंट का ले लो, ठीक है, क्योंकि ये था ओरिजिन, ठीक है, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। तो अगर जो चीज चेंज नहीं होती तो नेक्स्ट कमांड में उसकी वैल्यू को मत लिखो, दिस इज बेटर ऑप्शन। अगर लिख रहे हो तो फिर दोबारा से वो सही लिखा होना चाहिए, गलत नहीं लिखा होना चाहिए। अगेन विपुल इज एंटरिंग, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आपने एक ही वैल्यू लिखी है, तो ये फर्क है पहले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा, आप z और x को दोनों को लिखते या फिर एक को लिखते, ठीक है। जब वो चेंज ही नहीं हो रहा तो आप उसे नहीं लिखोगे बार बार। अब यहाँ से आपको टूल को ऐसे मूव कराना है अप टिल दिस 5th पॉइंट। सो यू आर ऑलरेडी प्लेस द टूल टू अ डेप्थ ऑफ कट पॉइंट। डेप्थ ऑफ कट पॉइंट तक आप एक बार लिख चुके हो। क्या डेप्थ ऑफ कट थी पूरे प्रोग्राम में? आपने सारी लाइंस पढ़ ली, कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है, देन इट इज अप टू यू। आप एक बारी में कितना है यहाँ पर है, देख लो ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। उस पूरे को कटिंग कर दो, ठीक है। 1 mm के कट्स ले लो, ठीक है, 2 के ले लो, 4 के ले लो, बट फर्स्ट सी व्हाट इज द वैल्यू टू बी रिमूव। ये वैल्यू है कितनी जो रिमूव करनी है, ये कैसे निकलेगी? इस डायग्राम से 50, हाफ 25 एंड दिस इज, ये कितना है आपके पास? इस डायग्राम में कहीं ना कहीं लिखा होगा ये, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू इज गिवन, देन you can find out that this 50 minus 30 is 20, so this will be 10, this will be 10, ठीक है। अगर ये 20 है तो कुछ और वैल्यू बनेगी, तो मैं अपलोड कर दूंगी इसमें क्या है, ठीक है। अभी इस डायग्राम में लिखी हुई चीज नहीं है ये, ठीक है। ये कितना है राइट नाउ? आपने क्या लिखा है? 15। 5th पॉइंट तक आना है, -41। अब 41 क्यों आना है? बिकॉज टूल इज एट दिस पोजिशन, तो पहले तो ये 1 mm चला, तो दिस 1 प्लस आगे चलना है 40, ये 40 है, यहाँ से इसको ड्रॉ करा हुआ है 140, सो 1 + 40 इज 41। बैकवर्ड डायरेक्शन में आयो, सो -41 z आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
देन एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है तो इसलिए लिखी नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपको सिंपली क्या लिखा हुआ दिख रहा है, z इज -41। ये देखो ये वाला पॉइंट, z इज -41। तो जो क्वेश्चन पूछा था अजय ने वो बिल्कुल ठीक था। इंक्रीमेंटल में देख रहे हो कितना कम प्रोग्राम दिख रहा है और कितना इजी भी हो गया समझना। मेरे खुद के लिए इजी है, बताने के लिए समझाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिंपली z इज -41, बाकी कोऑर्डिनेट सेम रहा, ठीक है। आप पूछ सकते हो यहाँ पे बाकी कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिख रहे, दूसरा इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो सेम है। आप सिंपली चेंज होता हुआ कोऑर्डिनेट लिखोगे हमेशा, तो ये चेंज होता हुआ यहाँ पे आ गया। इस कमांड को देने से क्या हुआ, व्हेन द टूल इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस इन अ लीनियर इंटरपोलेशन मोड एंड द वर्कपीस इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली सो द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम बोथ दी साइड्स, दोनों साइड से मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है, और टर्निंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड मटेरियल रहेगा और ये वाला तो रिमूव ही हो गया, सो इट विल बी इरेज्ड, ठीक है। इसलिए अब हमने इसे इरेज कर दिया है। देन थर्ड वन पार्ट इज लेफ्ट, टेपर टर्निंग। दिनेश इज एंटरिंग टेपर टर्निंग, ठीक है। अगेन कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है, आपको सिर्फ टूल की डायरेक्शन देखनी है, क्या उसे लीनियर चलना है या ओके। व्हाट वाज द पॉइंट लेफ्ट, ओनली वन पॉइंट वाज लेफ्ट एंड समबडी स्टार्टेड स्पीकिंग। फ्रॉम पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 6 व्हाट इज द चेंज, ठीक है। हमेशा आपको चेंज लिखना है, सी फॉर दिस चेंज, अभी आप पूरा लिख दो, ठीक है। क्या चेंज हुआ है, ठीक है। अगेन बाय मैथमेटिक्स व्हाट इज चेंजिंग, राइट द कोऑर्डिनेट बिकॉज इट इज अ टेपर्ड लाइन, इंक्लाइंड लाइन है, तो अब दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। कैसे चेंज हो रही हैं वो आपने लिख दिया। 10 फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में एरो लगा दो एक तो आप, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है एंड डाउनवर्ड वर्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस 10 is written, plus 10 is written, and the variation in z means horizontal में क्या वेरिएशन आया, z अभी ये था -41 था, ठीक है। वो कितना भी था वहां से उसे कितना चलना है, कितना मूवमेंट करना है, ठीक है। आपको इस पॉइंट तक आना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार देख लो, ये सर्कल जो बनाया है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो डिस्टेंस है ये आपको 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 35 है ये लाइन पैरेलल अगर आप यहाँ बनाओगे तो ये 35 ही रहेगा, ठीक है। सो व्हेन द टूल इज मूविंग फ्रॉम 5 पॉइंट टू नंबर 6 पॉइंट, z इज गोइंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वो बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा माइनस रहती है, इसलिए माइनस आया और वैल्यू कितनी आई 35, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई -35, दोनों चीजें इसमें बदली हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था समझाना। टेपर टर्निंग का पॉइंट की वैल्यू नहीं भी समझ में आ रही तो ये सिंपल मैथ्स है, आप अपने आप से समझोगे बाद में जाके तो क्लियर हो जाएगी आपको, लेकिन लेनी पॉइंट की वैल्यू इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, टूल ने आगे कितना चला है, ठीक है। आगे चला है या टूल पीछे चला है, वो प्लस माइनस का वैल्यू फर्क आ सकती है, चेंज साइन में होगा, ठीक है। और वैल्यू आप दोनों की पढ़ोगे, तो जब ये टूल यहाँ से 5th पॉइंट से लेके 6th पॉइंट तक आएगा, ठीक है, और ये रोटेट भी कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, टूल इस तरह से आ रहा है, तो ये पूरा मटेरियल काटते हुए आएगा, जैसे इतना पूरा एक ही स्लॉट में एक ही बार में ये कट हो रहा है। फर्स्ट कट इज द लास्ट कट हेयर, आपकी मर्जी थी तो आप इसे स्लॉट्स में कट करते, वो प्रोग्राम हम लेंगे प्रैक्टिस में जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे, बट अल्टीमेटली आपको एम क्लियर हो गया दैट नाउ द मटेरियल इज कट इन अ टेपर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द लास्ट लाइन, -41, 10 -35, उसके बाद लास्ट लाइन क्या बनी, Z76। ये कैसे बनी, ठीक है। सिंपली आपने टर्निंग भी पहले आपने फेसिंग कर दी एक, ठीक है, दूसरा आपने टर्निंग कर दी, या पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा, ये देख लो, ठीक है। पहले आपने फेसिंग करी है इस फेस की, देन आपने टर्निंग करी है इस फेस की, देन ये जो मटेरियल कट हुआ है इतना रह गया ट्रायंगल पार्ट, तो इसे आपने करा है टेपर टर्निंग। कोई अलग से कोई कमांड नहीं है इसकी टेपर टर्निंग की, टूल कैसे मूव कर रहा है लीनियर ही कर रहा था,
तो आपने क्या यूज करी है, G0 1 एंड देन द टारगेट पॉइंट, उसके आगे टारगेट पॉइंट ही आएगा। टारगेट पॉइंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो आपको प्रीवियस पॉइंट से लेना है क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है G91 में, ठीक है। लास्ट स्टेप इज सिंपली रिमूव द टूल या मूव द टूल अवे फ्रॉम द वर्कपीस एरिया। तो वर्कपीस एरिया से मूव करने से पहले चाहे आप 0 पे ले आओ, तो 0 पे लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी Z वैल्यू को देखो, ये है 35, ओ दिस इज इरेजर, दिस इज ड्रॉ, दिस इज 35, दिस इज 40, 30 45 प्लस 1, सो दिस इज 75 प्लस 1 इज ऑल्सो देयर, ओके 1 इज दी क्लियरेंस, ठीक है। पहले आप 0 तक लाए तो 30 प्लस 45 एक ही बारे में लाना है, तो सिंपली आप 30 प्लस 40 प्लस 1 ऐड